Hello students, hopefully your studies are going well during this period. In earlier 4 classes we have studied about the introduction of share capital and the methods of issuing share capital, that is at par, premium or at discount, and we have already studied about the oversubscription, undersubscription, minimum subscription. Today in this class we will study the concept of calls in arrear and calls in advance. Let's begin today's class now. We will study about the concept of calls in arrear. Student, calls in arrear is a situation when any of the due installment has not been received on the due date. If any of the due installment has not been received on the due date, then this is said to be the situation of calls in arrear. It is a loss to the company. Having calls in arrear is a loss to the company, hence this is to be debited in calls in arrear account. One additional account we require to be open here, that is calls in arrear account. It is a loss to the company if not paid later on. Calls in arrear is a loss to the company if it is not paid later on along with the interest. Then it is the loss to the company. And this loss is to be debited in calls in arrear account. This loss is to be debited in calls in arrear account. One separate account in this case we open, that is calls in arrear account. एक एडिशनल अकाउंट हमें ओपन करना पड़ता है कॉल्स इन एरियर अकाउंट. यदि ड्यू डेट पर हमें कोई कॉल रिसीव नहीं होती है तो हम उस अमाउंट को कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डेबिट करते हैं. The defaulter may pay the amount of arrear later on along with interest. If any of the call has not been paid and if the defaulter wants to pay this call later on after certain period, then he is allowed to pay, but company charges interest on such arrear. The calculation of interest on calls in arrear is not in the syllabus of class 12. However, in further classes you will study the concept regarding this. बेटा कॉल्स इन एरियर पे जो इंटरेस्ट होता है वो 12th के सिलेबस में हमारे नहीं है. हमें सिर्फ कॉल्स इन एरियर का कंसेप्ट पढ़ना है रिगार्डिंग द पासिंग जनरल एंट्री.
ऑन अकाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट। इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जो इंटरेस्ट है कॉल्स इन एरियर पे, ये कंपनी के लिए इनकम होता है और इसीलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज अ इनकम टू द कंपनी, हैंस इट इज़ टू बी क्रेडिटेड, बट द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज नॉट इन आवर सिलेबस। नाउ फोर्थ पॉइंट, if the question is silent regarding the rate of interest on calls in arrear, then it will be taken at the rate 10%. Company charges interest at the rate 10% on calls in arrear. आइए बेटा इसको पूरे कंसेप्ट को एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझ लेते हैं रिगार्डिंग द कॉल्स इन एरियर। हमने बताया जो कॉल्स इन एरियर आपका होता है वो कोई भी इंस्टॉलमेंट जो ड्यू हो चुकी हो और निर्धारित डेट पर वो इंस्टॉलमेंट अगर हमें रिसीव नहीं होती है तो वो हमारा कॉल्स इन एरियर कहलाता है। अब हमने बोला जो अमाउंट ड्यू हो चुकी हो, इसका मतलब अगर कोई ऐसी अमाउंट है जो पहले से ड्यू नहीं है तो उस अमाउंट पर कॉल्स इन एरियर नहीं हो सकता, उस इंस्टॉलमेंट पर कॉल्स इन एरियर नहीं हो सकता है। इसको ऐसे समझिए बेटा, एज वी नो that calls in arrear means if any of the installment has been not received on the due date, any of the due installment means if we talk about the installment, अगर हम installment की बात करें बेटा तो हमारी installment हो सकती है एप्लीकेशन के टाइम पर, अलॉटमेंट के टाइम पर, फर्स्ट कॉल के टाइम पर और सेकंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पर। हर एक स्टेजेस पे आपको पता है हम 2 एंट्री पास करते हैं, एक ड्यू की, एक रिसीव की, एक ड्यू की, एक रिसीव की, एक ड्यू की, एक रिसीव की। सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पर हम ऐसा करते हैं कि पहले रिसीव और फिर बाद में ड्यू, यानी कि इन 4 इंस्टॉलमेंट में हम एप्लीकेशन में पहले रिसीव की एंट्री करते हैं, बाद में ड्यू की। इसका मतलब सिर्फ यहाँ अलॉटमेंट और कॉल का पैसा ही पहले ड्यू होता है और एप्लीकेशन का पैसा पहले रिसीव हो जाया करता है, और कॉल्स इन एरियर आपका वहाँ होगा जहाँ पर अमाउंट पहले ड्यू हो चुका है। इसका मतलब कॉल्स इन एरियर एप्लीकेशन पर कभी नहीं होता है, एप्लीकेशन का पैसा हमारा कॉल्स इन एरियर में नहीं हो सकता। हमें कभी भी एप्लीकेशन के अमाउंट पर कॉल्स इन एरियर को फेस नहीं करना पड़ता है। कॉल्स इन एरियर यदि होगा तो या तो वो आपका अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर होगा, अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट का कॉल्स इन एरियर होगा, या फर्स्ट कॉल ड्यू अमाउंट का कॉल्स इन एरियर होगा, या सेकंड एंड फाइनल कॉल का ड्यू अमाउंट का एरियर होगा। एरियर अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो इसका पैसा एरियर हो सकता है, इसका हो सकता है, या इसका हो सकता है। एप्लीकेशन का पैसा कभी भी कॉल्स इन एरियर में नहीं होता है। चलिए अब इसका हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बेटा ये हमारा क्वेश्चन है, a company issued 10,000 shares of rupees 10 each. The price of share is rupees 10. As the issue price is not separately given, then it is assumed that the face value is equals to issue price. Payable rupees 3 on application, 3 on allotment, and balance on first and final call. All the money duly received except the following consideration. Mr. A, the holder of 500 share, has paid only application money. Suppose 10,000 shares are there of rupees 10 each,
एंड दिस 10 रुपीज आर कॉल्ड अप बाय द कंपनी। ये 10 रुपये कंपनी मांग रही है। 3 रुपये आपका एप्लीकेशन पर, 3 रुपये अलॉटमेंट पर और 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। मिस्टर ए की अगर हम बात करते हैं, मिस्टर ए द होल्डर ऑफ 500 शेयर, आउट ऑफ दीज 10,000 शेयर मिस्टर ए हैज बीन अलॉटेड 500 shares, but he has paid only application money. Means Mr. A ने अपने 500 शेयर्स पर हमने इनसे 3 रुपया मांगा, 1500 रुपया ये इन्होंने दे दिया। इन्हीं 500 शेयर्स पे हमने 3 रुपये अलॉटमेंट के फिर से मांगे, ये इन्होंने नहीं दिए। इन्हीं 500 शेयर्स पर हमने 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मांगे, 500 इंटू 4 2000 रुपये, ये भी इन्होंने नहीं दिया। मीन्स ये 2 अमाउंट आपकी मिस्टर ए की हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डेबिट करनी पड़ेंगी, 1500 और 2000। मिस्टर बी की बात करते हैं बेटा। मिस्टर बी द होल्डर ऑफ 300 शेयर हैज़ नॉट पेड द कॉल मनी। मिस्टर बी जो कि अलॉटी है 300 शेयर के, इन्होंने अपने 300 शेयर पे 4 रुपये नहीं दिए। 1200 रुपये इनका जो है 1200 अमाउंट है, ये भी आपको ट्रांसफ़र करना है कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। कॉल्स इन एरियर अकाउंट विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट with rupees 1500 and at the time of first and final call the calls in arrear account will be debited with 2000 plus 1200, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ने ही नहीं दी है, जबकि अलॉटमेंट सिर्फ मिस्टर ए ने नहीं दिया है। चलिए इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री कर लेते हैं हम लोग। हमारी जो होगी फर्स्ट एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन, एप्लीकेशन के टाइम पे हमारी फर्स्ट एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। हाउ मैनी शेयर्स वर देयर? 10,000। 10,000 शेयर्स पर हमें एप्लीकेशन का पैसा सारे शेयर होल्डर्स ने दे दिया है। अगर यहाँ पर कुछ शेयर होल्डर एप्लीकेशन का पैसा नहीं भी देते, कुछ एप्लीकेंट, तो भी वो कॉल्स इन एरियर ट्रीट नहीं किया जाता। एप्लीकेशन का पैसा ना मिलना कॉल्स इन एरियर नहीं होता है। कॉल्स इन एरियर उन्हीं इंस्टॉलमेंट पर होता है जिसका पैसा हम पहले ड्यू कर चुके हैं। एप्लीकेशन का पैसा हम पहले कभी ड्यू नहीं करते हैं। एप्लीकेशन का पहले हम रिसीव कर चुके होते हैं, उसके बाद ड्यू करते हैं। इसीलिए एप्लीकेशन के टाइम पर कभी भी कॉल्स इन एरियर नहीं हो सकता एप्लीकेशन का पैसा। देखिए बेटा, इसीलिए हमें एप्लीकेशन में फुल अमाउंट मिल गया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, इस क्वेश्चन में नेम ऑफ द शेयर था नहीं, तो हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिख रहे हैं। 10,000 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन पे 3 रुपये हमने मांगे हैं। 10,000 इंटू 3 30,000। सेम अमाउंट से हम ड्यू कर लेते हैं। ये रिसीव की एंट्री हो गई आपकी। सेकंड एंट्री हमारी ड्यू की हो जाएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। ये हमारी एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री और ड्यू की एंट्री हो गई। अब हम करते हैं बेटा अलॉटमेंट एंट्री ड्यू की और फिर रिसीव की। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री हमारी, जब हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट ड्यू वी वर नॉट अवेयर दैट वी विल नॉट रिसीव द अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, फुल अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करते समय हमें नहीं पता रहता कि अलॉटमेंट पर एरियर हो जाएगा। ये हमें तब पता चलता है जब पैसा हमें मिलता है, यानी रिसीव की एंट्री के टाइम पर हमें कॉल्स इन एरियर शो करना पड़ता है। ड्यू हम फुल अमाउंट से करेंगे। ड्यू करते समय हमें ये नहीं पता रहता कि हमें पैसा नहीं मिलेगा। जब हम रिसीव करने पहुंचते हैं उसी पैसे को, तब हमें जाके पता चलता है कि हाँ भाई, इतने शेयर होल्डर्स ने, इतने एप्लीकेंट ने पैसा हमें अलॉटमेंट का नहीं दिया है। अभी प्रेजेंट वाले क्वेश्चन में मिस्टर ए ने अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, ना ही उन्होंने कॉल्स का पैसा दिया है। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स हैं हमारे और अलॉटमेंट पे भी ₹3 है, यानी अलॉटमेंट पर भी हमें आशा है, कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव ₹30,000 ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। कंपनी को उम्मीद है कि भाई हमें अलॉटमेंट पे भी 30,000 रुपये मिल जाएंगे। बट एट द टाइम ऑफ रिसीविंग, जब कंपनी रिसीव की एंट्री करती है तो उसके बैंक में जो पैसा आता है वो कम आता है। जब हम बैंक की एंट्री करते हैं बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये अलॉटमेंट पे हमें 30,000 रुपये मिलने की उम्मीद थी, पर हमने बैंक में देखा तो हमारे पास पैसा कम आया। क्यों कम आया? मिस्टर ए जो शेयर होल्डर थे, जिनके पास 500 शेयर्स थे, उन्होंने ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो यानी एरियर हो गया। एरियर हमारे लिए लॉस होता है, लॉस को हम डेबिट करते हैं, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से डेबिट होगा बेटा? मिस्टर ए के 500 शेयर्स पे 3 रुपये, यानी 1,500 रुपये हमें नहीं मिल पाया। तो 30,000 रुपये में से 1,500 रुपये हमें नहीं मिल पाया, तो मिला कितना? 30,000 माइनस 1,500, 28,500। ये अमाउंट आप ऐसे निकाल सकते हैं, 30,000 माइनस 1,500, या फिर आप इसी अमाउंट को निकाल सकते हैं। भाई आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 थे, 10,000 में से 500 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, तो मिला कितने पे है? मिला है 9,500 पे। 9,500 इंटू 3 कर देंगे तो भी आपका यही अमाउंट आएगा। अब हम करते हैं बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री, पहले ड्यू की और फिर रिसीव की। पहले ड्यू की एंट्री, फिर से हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करते समय ये नहीं पता कि कितने लोग पैसे नहीं देंगे, तो हम ड्यू फुल अमाउंट से कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़, 40,000 से हम ड्यू करेंगे इसको। रिसीव की एंट्री जब हमने करी तो हमारे पास पैसा कम आया, क्योंकि क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमें 40,000 रुपये चाहिए थे, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमें 2 लोगों ने नहीं लिया है, मिस्टर ए ने और बी ने। मिस्टर ए ने अपने 500 शेयर्स पर 4 रुपये, 2,000 रुपये नहीं लिए। मिस्टर बी ने अपने 300 शेयर्स पे 4 रुपये, यानी 1,200 रुपये नहीं लिए। टोटल एरियर का जो अमाउंट है वो मिस्टर ए का और मिस्टर बी का, मिस्टर ए का 2,000, मिस्टर बी का 1,200।
टोटल कॉल्स इन एरियर हमारा हो गया 3200। बाकी जो अमाउंट बचा है वो बैंक में आपका चला जाएगा। 40,000 रुपये में से आप माइनस कर दीजिए 3200 रुपये। 40 में से 3,000 माइनस कर दीजिए तो आपका 37 बचा। 200 माइनस कर दीजिए 36,800। ये हमारा बैंक में आ गया। इस अमाउंट को दिस माइनस दिस करके आप लिख लीजिए, या फिर आप कैसे निकाल सकते हैं कि भाई 10,000 शेयर्स में से हमें मिस्टर ए के 500 का पैसा नहीं मिला और 300 मिस्टर बी पे नहीं मिला, यानी 800 शेयर्स पर हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला है। तो कितने पे मिला है? 9,200। 9,200 इंटू 4 कर दीजिए तो यही अमाउंट आपका बैंक में आ जाएगा। ये अमाउंट बैंक का 9,200 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 36,800। तो दिस इज वॉट द कंसेप्ट अबाउट द कॉल्स इन एरियर। अब हम कॉल्स इन एडवांस पढ़ते हैं। ये हमने कॉल्स इन एरियर के बारे में पढ़ा। चलिए बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस। ये कॉल्स इन एरियर का अपोजिट है। कॉल्स इन एरियर वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट की मिलने की हमें उम्मीद हो और वो अमाउंट हमें ना मिले। लेकिन कॉल्स इन एडवांस वो अमाउंट होता है जिसकी मिलने की हमें कोई उम्मीद ना हो और वो पैसा हमें मिल जाए। मीन्स कॉल्स इन एरियर वो अमाउंट है जो ड्यू करने के बावजूद भी ना मिले, और कॉल्स इन एडवांस वो अमाउंट है जो बिना ड्यू करे ही मिल जाए, ड्यू करने से पहले ही मिल जाए, तो उसको हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। देखिए बेटा, इफ एनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट has been received before its due date, then this situation is said to be calls in advance। ऐसी सिचुएशन ड्यू डेट से पहले ही अगर अमाउंट हमें रिसीव हो जाए, देन इट इज सेड टू बी कॉल्स इन एडवांस। इट इज अ टाइम बीइंग प्रॉफिट टू द कंपनी। ये कंपनी के लिए कुछ समय के लिए प्रॉफिट होता है एक तरीके से। इट इज अ time being profit to the company। टाइम बीइंग क्यों बेटा? क्योंकि कॉल्स इन एडवांस आपको मिल गया है समय से पहले, लेकिन जब समय आएगा तो इसी अमाउंट में से आपको एडजस्ट करना है पैसा। यानी कि जब आपको मिला तो आपने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट किया, लेकिन जब उस कॉल का ड्यू डेट आएगी तो इसी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को आपको डेबिट करके एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी जो क्रेडिट हमने किया था प्रॉफिट मान के, वो बाद में लेटर ऑन हम डेबिट कर देते हैं, तो प्रॉफिट अब प्रॉफिट नहीं रहा। इसीलिए ये टाइमिंग प्रॉफिट होता है, जिसको हमें बाद में एडजस्ट करना होता है। इट इज़ अ टाइमिंग प्रॉफिट टू द कंपनी एंड हैंस इट इज़ क्रेडिटेड, हैंस it is to be credited to the calls in advance account। ये टाइमिंग प्रॉफिट होता है और इसीलिए हम इसको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। बट है ये टाइमिंग प्रॉफिट, यानी ये अकाउंट हमने क्रेडिट जो किया है ये अभी थोड़े समय के लिए किया है, क्योंकि ड्यू डेट से पहले पैसा हमें मिल गया है। जब ड्यू डेट आएगी तो इसी अकाउंट को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। यानी ड्यू डेट पर पैसा तो मिलेगा नहीं क्योंकि मिल चुका है,
तो उस मिल चुके हुए पैसे को हम इस अकाउंट से दिखाते हैं, इसी अकाउंट को बाद में हम डेबिट करेंगे। तो एडवांस अकाउंट का इफेक्ट हमारा ख़त्म हो जाता है। एक बार आपने क्रेडिट किया, दूसरी बार आपने उसी अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो हमारा इफेक्ट उसका ख़त्म हो जाता है। इसीलिए ये टाइमिंग प्रॉफिट है। देखिए, company, if the question is silent, if the question is silent, then the rate of interest on calls in advance is at the rate 12% per annum, if the question is silent. But the concept regarding the calculation of interest is not in the syllabus of class 12. Therefore, we need not to study the concept regarding the calculation of interest on calls in advance and even on calls in arrear. दोनों पे हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का पार्ट क्लास 12 में नहीं पढ़ना है। On calls in advance, company pays interest, that is at the rate 12% per annum. तो ओवरऑल बेटा हमने समझ लिया कॉल्स इन एडवांस कौन सी सिचुएशन होती है। एनी अमाउंट विच हैज़ नॉट बीन येट ड्यू बट द पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, ऐसा पैसा जो हमने अभी तक ड्यू भी नहीं किया है और पैसा हमें मिल जाए, तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है। इसको हम क्रेडिट करते हैं और फिर जब एक्चुअल ड्यू डेट आती है तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जो हमने पहले क्रेडिट किया है उसी को डेबिट करके हम पैसे को एडजस्ट कर देते हैं। आइए इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे हमें बेटर समझ में आ जाएगा। लेट्स डू द क्वेश्चन नाउ। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए कॉल्स इन एडवांस का। अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, सेम क्वेश्चन है जैसा एरियर का था। पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल। पिछले क्वेश्चन में एक ही कॉल थी 4 रुपये की, यहाँ पे 2 कॉल हो गई बेटा। फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2। फर्स्ट कॉल भी 2 रुपये की है और फाइनल कॉल भी 2 रुपये की। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड विद द फॉलोइंग कंसिडरेशन, सारा पैसा हमें मिल गया। इन बातों को भी हमें ध्यान में रखना है। पहला, मिस्टर ए जो है 500 शेयर्स हैं जिनके पास, उन्होंने सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ दे दिया। अगर हम मिस्टर ए की बात करें तो मिस्टर ए के पास 500 शेयर्स थे, इनसे हमने मांगे थे 10 रुपये, और ये 10 रुपये हमने मांगे कैसे? 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। मिस्टर ए ने ये सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिया, यानी 3 रुपये इंटू 500 1500 रुपये, 3 रुपये इंटू 500 1500 रुपये, 2 रुपये इंटू 500 1000, 2 रुपये इंटू 500 1000। बेटा याद रखिए, जिस तरह से एप्लीकेशन के पैसे पे हमारा एरियर नहीं हो सकता है, इसी तरह से अगर एप्लीकेशन का पैसा हमें मिला है तो उसको हमें एडवांस नहीं ट्रीट करना है। कभी भी एप्लीकेशन का पैसा हमें एडवांस नहीं हो सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा ड्यू डेट से पहले कैसे आ जाएगा आपका? नहीं आ सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे तो पहले हम रिसीव ही करते हैं, तो ड्यू डेट से पहले कैसे पैसा मिल जाएगा आपको? इसीलिए एप्लीकेशन मनी
पर कभी ना तो एरियर होगा और ना ही एप्लीकेशन का पैसा कभी एडवांस होगा। हाँ, एप्लीकेशन के टाइम पर फर्दर कॉल्स का एडवांस हो सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन में आपके मिस्टर ए ने एप्लीकेशन के टाइम पर, एप्लीकेशन की स्टेज पर अलॉटमेंट भी दे दिया है, फर्स्ट कॉल भी दे दिया है, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी दे दिया है। एप्लीकेशन तो उनको देना ही था, एप्लीकेशन के अलावा जो दिया वो एडवांस ट्रीट होगा। यानी टोटल हमें जो पैसा मिला है मिस्टर ए से वो मिला है 1500, 1500, 3000, 4000, 5000। इस 5000 रुपये में से ये जो एप्लीकेशन का 1500 है ये एडवांस नहीं है, एडवांस सिर्फ हम 3500 रुपये को मानेंगे। ये अलॉटमेंट 1500 की, फर्स्ट कॉल 1000 की, सेकंड कॉल 1000 की, सिर्फ ये एडवांस है। मिस्टर ए ने कॉल से एडवांस हमें 3500 रुपये दिया है। मिस्टर बी ने ऑन द अदर हैंड, मिस्टर बी का देखिए, मिस्टर बी ने हमें, मिस्टर बी शेयर होल्डर थे 700 शेयर के, इन्होंने अपने कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे दे दिया है। यानी जब हमने अलॉटमेंट रिसीव करना चाहा, अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री करी तो हमारे पास पैसे एक्स्ट्रा आ गए। किसने दे दिए एक्स्ट्रा पैसे? एक्स्ट्रा पैसे दे दिए मिस्टर बी ने। इन्होंने कॉल के पैसे अलॉटमेंट के टाइम पे दे दिए हैं। यानी मिस्टर बी से हमें 700 शेयर पे फर्स्ट कॉल के 2 रुपये, 1400 रुपये, और 700 ही शेयर पे सेकंड कॉल के 2 रुपये, 1400 रुपये, टोटल हमें 2800 रुपये मिल चुके हैं मिस्टर बी से एडवांस। ये 2800 रुपये कॉल से एडवांस अकाउंट में क्रेडिट होंगे जब हम अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री करेंगे, और ये जो अमाउंट है टोटल 3500 रुपये की, ये क्रेडिट होगी जब हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। तो एप्लीकेशन के टाइम पर हमें टोटल पैसा जो मिला है बेटा 10,000 शेयर्स पे, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 थे, 10,000 शेयर्स पे, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा तो सब नहीं दिया है, इनको भी देना था, इन्होंने दिया है, इनको भी देना था, इन्होंने दिया है। तो 10,000 शेयर्स पे 3 रुपये, 30,000 रुपये तो हमें मिलने ही थे। इसके अलावा एप्लीकेशन के टाइम पर हमें सिर्फ ये एडवांस मिला है, 30,000 तो मिलना ही था हमें, प्लस मिस्टर ए ने एडवांस दिया है 3,500 का। तो हमारी जो एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री होगी वो 30,000 प्लस 3,500, 33,500 से हम एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री। आइए समझ लेते हैं बेटा इसकी जनरल एंट्रीज। एप्लीकेशन के टाइम पर हमारी पहली एंट्री रिसीव की होती है, तो रिसीव की एंट्री कर लेते हैं बेटा। रिसीव की एंट्री में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे पास जो पैसा रिसीव हो गया है टोटल 10,000 शेयर्स पे 3 रुपये, 30,000 तो ये हमें मिलना ही था। इसके अलावा मिस्टर ए जो थे उन्होंने अपने 500 शेयर्स पे हमें एडवांस दे दिया है। 3 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, 2 रुपये सेकेंड कॉल। तो यानी उन्होंने हमें 3, 2, 5 और 2, 7 रुपये इंटू 500 शेयर्स, 3500 रुपये उन्होंने हमें एडवांस दे दिया, 3500। तो 30,000 तो ये हमें मिलना था, प्लस 3,500 हमें मिस्टर ए से एडवांस मिल गया। तो हमारे पास बैंक में 33,500 रुपये आ गया है। अब हम ड्यू की जब एंट्री करेंगे तो इस 3,500 को हम एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाएंगे। देखिए ड्यू की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। एप्लीकेशन में हमारा पैसा था टोटल 33,500, जबकि एप्लीकेशन का हमारे पास आना कितना चाहिए था, सिर्फ 30,000 रुपये।
तो 3,500 रुपये हमारे पास एडवांस आ गया है। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है बेटा ये 3,500 रुपये में किस किस का एडवांस है। ये कॉल्स इन एडवांस है मिस्टर ए का, और मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स थे? 500। तो 500 इंटू 3 रुपीज़, ये अलॉटमेंट का पैसा पड़ा है 1,500 रुपये। 500 इंटू 2 रुपीज़ 1,000, ये आपका फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस आ गया है। और 500 इंटू 2 रुपीज़ ये 1,000 सेकेंड कॉल का पैसा एडवांस आ गया है। 1,500 प्लस 1,000 प्लस 1,000 टोटल 3,500 हमें एडवांस रिसीव हो चुका है। देखिए ये हमारे लिए टाइम बीइंग प्रॉफिट है, इसीलिए हमने क्रेडिट किया है। जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो अलॉटमेंट के टाइम पे ये जो हमारे पास 1,500 रुपये एडवांस आया था इसको एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के टाइम पे, यानी इसमें से पैसा निकाल के हम वहाँ दिखा देंगे, डेबिट कर देंगे। ऐसी फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडजस्ट कर देंगे, ऐसी सेकंड कॉल के टाइम पे एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने का मतलब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को आपको डेबिट कर देना है। तो 3,500 से आपका कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट है और स्लोली ये डेबिट हो जाएगा 3,500 से। पहले डेबिट होगा 1,500 से, फिर 1,000 से, फिर 1,000 से, तो ये अकाउंट आपका कैंसिल हो जाएगा। आइए अब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। सेकेंड एंट्री हमारी अलॉटमेंट की ड्यू की। अलॉटमेंट ड्यू को हम फुल अमाउंट से करेंगे, रिगार्ड द लेस ऑफ द फैक्ट द अमाउंट विच हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव्ड और वॉट एवर बी द एरियर। यहाँ पर फुल अमाउंट से आप ड्यू कर लीजिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया बेटा अलॉटमेंट। हमें 10,000 शेयर्स पे 3 रुपये मिलने की उम्मीद है। 30,000 रुपये हमें उम्मीद है कि अलॉटमेंट पर मिलेंगे। लेकिन देखो इस 30,000 में हमें याद है कि मिस्टर ए अपने 1,500 रुपये दे चुके हैं। तो अभी रिसीव की एंट्री करते समय वो सब हमें दिखाना है। तो आइए रिसीव की एंट्री कर लेते हैं। जब हमने रिसीव की एंट्री करी तो रिसीव की सबसे पहले सिंपल एंट्री करते हैं हम। हमारे पास एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में हमें 30,000 रुपये मिलने की उम्मीद है, लेकिन 30,000 रुपये हमें नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे 30,000? क्योंकि मिस्टर ए तो एप्लीकेशन के टाइम पे ही 1,500 रुपये हमें दे चुके हैं। करेक्ट, मिस्टर ए तो दे चुके हैं। तो यहाँ पर उनका पैसा एडजस्ट कर दो, यानी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट से निकाल लीजिए। एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से? मिस्टर ए का अलॉटमेंट हम एडजस्ट कर रहे हैं 1,500 रुपये। जो 3,500 रुपये थे एप्लीकेशन के टाइम पे, उसमें 1,500 रुपये मिस्टर ए के अलॉटमेंट के पैसे वो वहीं दे चुके थे, तो इसीलिए यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ नहीं मिलेंगे तो हमारा बैंक अमाउंट कम हो जाएगा 1,500 से। यानी हमें मिलने कितने चाहिए? 30,000 माइनस 1,500, 28,500 मिलने चाहिए। फिर देखिए क्या हुआ कि 28,500 नहीं मिले, हमें ज़्यादा मिले। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पर मिस्टर बी ने हमें एडवांस दे दिया है। मिस्टर बी ने क्या एडवांस दिया? मिस्टर बी ने, जिनके पास हमारे नंबर ऑफ शेयर्स थे 700 थे, उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकंड कॉल का पैसा 1,400 और 1,400, ये 2,800 रुपये इन्होंने हमें एडवांस दे दिया है। तो यानी 25,800 में ये 2,800 रुपये और जुड़ जाएगा आपका। ये हमारी बैंक में आ जाएगी टोटल अमाउंट इतना 28,500 प्लस 2,800, 28,000 और 2,000 30,000 और 500 और 800 1,300, 31,300 रुपये टोटल अमाउंट हो गया बेटा हमारा
31,300 रुपये ये बैंक में आएगा। अब हम एंट्री फर्स्ट कॉल की एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री कर लेते हैं। अब हमारे पास मिस्टर ए का भी एडवांस पैसा आ गया है फर्स्ट कॉल का, और मिस्टर बी का भी फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस आ गया है, सेकंड कॉल का भी पैसा मिस्टर ए ने एडवांस दे दिया है, मिस्टर बी ने भी एडवांस दे दिया है। ड्यू की और रिसीव की एंट्री हम कर लेते हैं फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल की। देखिए थर्ड एंट्री आ गई हमारी फर्स्ट कॉल हम ड्यू कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे हमें 10,000 शेयर्स पे 2 रुपये चाहिए, यानी 20,000 रुपये से हमने ड्यू कर लिया। अब जब हम रिसीव करेंगे तो हमें पता है बेटा मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल का पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिया था और मिस्टर बी ने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे दे दिया है। जो टोटल हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट किया है 2800 रुपये, उसमें से 1400 रुपये मिस्टर बी के हैं, और यही फर्स्ट कॉल का पैसा मिस्टर ए ने एप्लीकेशन के टाइम पे दिया था। एप्लीकेशन के टाइम का एडवांस था मिस्टर ए का 3500, 1500 रुपये अलॉटमेंट का था और 1000 रुपये फर्स्ट कॉल का था। यानी टोटल एडवांस हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 1000 रुपये मिस्टर ए का और 1400 रुपये मिस्टर बी का। 1000 और 1400 2400 रुपये हमारे पास आ चुका है। इसको कॉल्स इन एडवांस में आपको डेबिट करना है। हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में हमें 20,000 रुपये मिलने की उम्मीद है, पर हमें एडवांस ऑलरेडी मिल चुका है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना पैसा मिल चुका है, ए का और प्लस बी का। ए का बेटा 1000 रुपये और बी का 1400 रुपये। ये टोटल हमें पहले ही मिल चुका है, तो हमारे पास टोटल 2400 रुपीज़ हमें मिल चुके हैं 2400। तो 20,000 में से 2400 आपके चले गए, ये हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं इसलिए नहीं मिलेंगे। तो मिलेंगे कितने, 17,600। ये आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई। ठीक इसी तरह से हम सेकंड कॉल की भी एंट्री कर लेंगे। सेकंड कॉल की एंट्री के लिए सिर्फ नाम चेंज कर दीजिए, अमाउंट सेम रहेगा, क्योंकि हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल भी 2 रुपये की है और एडवांस का अमाउंट भी सेम है दोनों पे। मिस्टर ए के 1000 रुपये हैं, मिस्टर बी के 1400 रुपये हैं। तो एंट्री देखिए हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल की, सिर्फ हम नाम यहाँ पे बदल देते हैं, एंट्री का ट्रीटमेंट सेम रहेगा, सिर्फ हमें नाम ही चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। फोर्थ एंट्री हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल की, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट हो गया। ये आपका 20,000 से ड्यू हो गया बेटा, 20,000 हमें मिलना चाहिए था। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 20,000 से ड्यू हो गया। 2400 रुपये हमें ऑलरेडी मिल चुका है, बाकी रिमेनिंग अमाउंट हमारा बैंक में आ जाएगा। तो बेटा ये हमारा कॉल्स इन एडवांस था। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करिए, कंसेप्ट आपके और क्लियर होंगे बुक से। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ 4 फीचर ऑफ शेयर्स। 4 फीचर के कंसेप्ट को हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। जो अगली क्लास हम अपलोड करेंगे आपके लिए, उसमें 4 फीचर के बेसिक्स हम पूरा कंसेप्ट एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। उसके बाद हर टॉपिक वाइज हम 4 फीचर को लेकर चलेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।